So cold reading means reading loudly from a script or a text without doing any homework. Like you go to a shop, you pick up a book and you start reading because you've never seen it before, something like that. So it could possibly be a script that you are seeing for the first time ever. Right. Cold reading is a skill mostly desired for audiobook reading projects. Now, not only audiobooks, but if at all, if you are a good cold reader, okay, this is going to help you to, it will give you more time to color your work. Okay, so if you are a good reader, you don't have to spend time picking up the words. It comes very easily to you. That much more time you get to color and do the voice acting that is required. Right. हाँ, तो इसमें डू वी गेट अ मिनट एटलीस्ट टू रीड इट कि डायरेक्ट स्टार्ट करना है आपने देते ही? You get a minute actually. Okay, you get a total minute, but abhi humko dekhna hai whether we require to give you 10 seconds or what, or 5 seconds, something like that. ठीक है. Okay, within that 1 minute is what you do. Yeah. तो एक्चुअली क्या होगा, देखो हम जब टाइमर सेट करेंगे तो उस टाइमर में आपकी मतलब आपको स्क्रीन दिख गया कि टाइमर स्टार्ट हो गया. अब उस 1 मिनट में whatever you do, you take 30 seconds to just prepare and then 30 seconds is what you read. So you end up reading less than your opponent. I actually developed cold feet and cold reading, Preeti. The challenge, I mean, the fact that something new and you just have to start off. Yes. So yes, it's fun actually. It is fun. Yeah, it is. You, it is. First of all, the tricks. What will be the tricks? To do this well is आपको पहले तो you have to not think of it that this is a challenge. This is a time based thing. You have to take your time. Actually, if you see 1 minute is a very long time. Yeah. Okay. So आपको let's see. I will demonstrate something to you all. Okay. मैं demonstrate करूँगी. तो फिर आपको समझ आएगा. Let's move ahead. Yes. Yeah. Okay, अभी ये क्या चैलेंज है मैंने लिखा हुआ है. You all can also read for yourself. So 2 participants will be opposing, let's say Harsha or Pallavi. Okay, participant A challenges participant B for a topic. जैसे let's say Pallavi says Harsha को Indian classical music. ऐसा एक टॉपिक दे दिया हर्षा को. ठीक है. फिर the moderator like me will Google that topic Indian classical music. मैं ऐसे टाइप करके सर्च करूंगी जो मैं आपको स्क्रीन शेयर दूंगी. नाउ जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी वहां पे दिखेंगे आपको इंडेक्स लिंक्स, उसमें से पल्लवी बोलेगी हाँ थर्ड वाला, फोर्थ वाला, व्हाटएवर. Okay. So what is the idea here, Pallavi, is you have to give, as you want to put him in the tight spot as much as possible because he's an opponent. ठीक है ना. तो तुम चूज करना, बोलना कि तीसरा वाला, चौथा वाला, whatever. Then when I open it, Harsha starts to read this. Okay, whatever is this, and your time is starting. The moment it is on the screen and we say time start, I say time start. I'll put on my stopwatch or something. Ideally, I should have displayed it on the screen, but अभी तक मेरी भी उतनी तैयारी नहीं हुई है. So we'll see the next time. तो अभी मैं फिलहाल कोई भी I'll delegate somebody to put the timer. Let's say वैशाली, हर्षा, कोई भी. Okay, not हर्षा is playing supposing. तो सायरा, कोई भी टाइमर लगा दो, स्टॉप वॉच लगा दो और 1 मिनट ऑन करेंगे हम लोग. ठीक है. 1 मिनट होता है तो रुकना है. अब जनरली वी विल सी हाउ मच ही रेड. अब मैं मेरी बात बता रही हूँ, मैं जज कैसे करूंगी. हर्षा ने कितना टेक्स्ट पढ़ा, कितनी बार फंबल किया, इज व्हाट आई ट्राई टू पिक अप. आई ट्राई गिविंग हिम पॉइंट्स ऑन दैट. यही बात समझ में. सो हाउ फ्लॉलेसली है, बिना फंबल के कितना पढ़ा उसने, वो मेजर. ओके, या बिमल इज आल्सो कमिंग. सो सबको समझ आया है what is to be done? Yes. Yeah. Okay. And जसपाल. Yes, जसपाल. मैं कह रहा था एक बार मेरे को थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर दीजिए एक बार. वापस बोल दो. बिमल भी आ गए हैं. हाँ थोड़ा सा. हाँ. तो वापस यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो कोल्ड रीडिंग मतलब क्या? कोल्ड रीडिंग मतलब आपने कभी वो टेक्स्ट को देखा नहीं, अभी आप पहली बार देखोगे और पहली बार पढ़ोगे. ठीक है. अब जब पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत सारे फंबल्स होते हैं. ओके, आपको वो एक्चुअली कहाँ पकड़े जाते हो कि आपको बोल क्या रहे हैं वो खुद को ही समझ नहीं आ रहा है, तब आप पकड़े जाते हो. आप जो बोल रहे हो, इज इट गेटिंग अंडरस्टूड बाय अस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फंबल होना इज फिर भी ओके, बट जो बोल रहे हो उसको समझ पा रहा है क्या ऑडियंस. दैट इज द बिगर पॉइंटर दैट आई विल बी चेकिंग ऑन. ठीक है. तो जैसे जसपाल और बिमल एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं. तो जसपाल ने बिमल को कोई टॉपिक बोल दिया, तो बिमल मैंने सर्च किया वो टॉपिक और जो भी लिस्ट आई उसमें से जसपाल बोलेगा तीसरा वाला, चौथा वाला, तो वो मैं क्लिक करूंगी. फिर वो जैसे ही दिखेगा, लेट्स से वैशाली टाइमर ऑन करेगी,
और विमल बोलना चालू करेगा। 1 मिनट हो गया तो शी विल टेल स्टॉप। अब वो स्टॉप होने के बाद हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, कितना टेक्स्ट विमल ने पढ़ा। जबरदस्ती फास्ट पढ़ना नहीं है, भले आप 4 ही लाइनें पढ़ो पर वो 4 लाइनें परफेक्टली करो, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू फिनिश अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो। टेक योर टाइम, ओके। तो कितना अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पढ़ा है। देन सेकेंडली, एक्चुअली अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इज नॉट एट ऑल द पॉइंट, ओके। बिल्कुल भी जजिंग का पॉइंट नहीं होगा। आपने फंबल कितनी बार किया, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड कितने हो गए थे when you're reading, how confused are you when you are yourself reading it, and समझ कितना आ रहा है जो आप बोल रहे हो, हमको कितना समझ में आ रहा है जब आप कोल्ड रीडिंग कर रहे हो। क्योंकि जब आप ऑडियो बुक्स करते हो रिकॉर्ड, तो ऑडियो बुक्स तो 200 पेजेस 300 पेजेस ऐसे बड़े बड़े बुक्स होते हैं। वो जब आप पढ़ने लगते हो तो आपको प्रिपरेशन टाइम का चांस होता ही नहीं है, तब आपको कोल्ड रीडिंग ही करनी पड़ती मोस्टली, अनलेस फिर आपने बुक भी पढ़ी हो तो भी वो इट्स एज गुड एज कोल्ड रीडिंग। लेट्स से आपने चेतन भगत की एक 2 स्टेट्स की बुक पढ़ी है, ठीक है, पर मैंने बोला अच्छा वैशाली स्टार्ट, अभी तेरा टाइम स्टार्ट हो गया, ये ऑडियो बूथ अभी बूथ में बैठे हैं, अब तू इसका ऑडियो बुक बनाने को बैठ जा। भले उसने वो बुक पढ़ी है तो भी those when she is delivering those words they are like cold reading only, क्योंकि अपने को तो टेक्स्ट याद नहीं रहता ना बुक्स में, you don't remember the text and the how you are going to modulate, ये थोड़ी याद रहेगा, है ना। थोड़ी सी familiarity होगी if you have read that text before. All right, is that clear to everybody now? Yeah, yes. ठीक, हम ना आगे जाएंगे। ये तो नहीं है दोनों जन, अभी कौन जाएगा बता दो। हाँ, ये जोड़िया है, कौन जाना चाहेगा बोलो। आयरिस नितेश नहीं आए ना अभी तक? नहीं। पल्लवी हर्षा, तो अभी हमारे पास 3 जोड़ियां है इसमें से। पल्लवी हर्षा इंग्लिश लिखा था मैंने, मराठी वाले हिंदी भी कर सकते हो। मराठी कर सकते क्या सायरा? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट करें। ओके, सो वी स्टार्ट विद दिस, ठीक है। सो हु इज चैलेंजिंग हु? सायरा आप दे दो मेरे को कोई स्क्रिप्ट। ठीक है, कोई अभी स्क्रिप्ट देना है या खाली टॉपिक में? टॉपिक देना है ना? हाँ, टॉपिक एंड प्रीति विल लुक आउट फॉर नहीं देना है आपको, टॉपिक देना है। सॉरी, यस। तो वैशाली टाइमर लगाओ ना नहीं, पहले नहीं, सर्च आने के बाद टाइम लगेगा। अच्छा, ठीक है। अभी सिर्फ बोल दो क्या चाहिए, मैं वो टाइप करूंगी। मॉरल स्टोरी चलेगा वैशाली? हाँ बिल्कुल। मॉरल स्टोरी मराठी करें ना आप दोनों? हो ठीक है। अब सायरा इसमें से आप चूज करके बोलना, मैं स्क्रॉल करूंगी आहिस्ता से। फर्स्ट वाला चलेगा, माझी गोंडसाई। चालेल। ओके, अभी हर्षा कैन यू टाइम? नो, हर्षा के हाथ में फोन है। पल्लवी आपके लैपटॉप फोन दोनों है आपके पास? अच्छा, ये तो वीडियो आ गया। वो वीडियो था, it was not a... It's a YouTube वीडियो, यहाँ पे देखेंगे लिंक। यस। सब YouTube वीडियोस है, यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे है तुषार बेडू। फिर ये भी है, बताओ। marathi-story.com है, वहां पे स्टोरीज है। मराठी कविता संग्रह, देयर इज अ पोएम हियर। चल भी नहीं, वो कुछ भी चलेगा। ये वाइट सवई चलेगा, हुशार बेडू। नहीं सायरा, इट इज योर चॉइस, नॉट हर्स। हुशार बेडू चलेगा। हुशार बेडू, क्विकली यू हैव टू सी दैट, ठीक है। पल्लवी, यू से स्टार्ट, देन शी स्टार्ट्स। स्टार्ट। फार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। एकदा एक राजा आपल्या मुलांसाठी राजवाड्याजवळ एक मोठा तलाव बांधतो आणि त्यात मुलांना खेळण्यासाठी मासे सोडतो। तलाव तयार झाल्यावर त्याची मुलं तलाव पाहायला जातात। त्या तलावात सगळ्या माशांबरोबर एक बेडूक पण राहत असतो। राजाच्या मुलांनी त्या अगोदर बेडूक कधीही पाहिलेला नसतो, त्यामुळे त्यांना वाटते तलावात हा बेढप प्राणी कशाला। ते राजाला जाऊन सांगतात की तलावात त्यांना न आवडणारा एक बेढप प्राणी आहे। If you can scroll down, Preeti. You need to scroll. Oh, stop. Awesome, Vaishali, very good. ऐसा लगा भी नहीं कि you are reading it for the first time. Really very good. Congratulations. Very That nice. is awesome. Yes. That's totally awesome. Okay, full marks here. And nowhere were we feeling that हमको समझ नहीं आ रहा है। जिसको मराठी समझ आ रही है उसको सबको समझ आ रहा था ना। कहानी अनफोल्ड हो रही थी, कहानी अच्छे से अनफोल्ड हो रही थी। But I would also want you to do like this, you know.
Yeah. Which kid story ना, आपने kid story लिया. हुशार yes, बेडूक. yes. I would want you to do this way. हुशार Yes, बेडूक. yes. फार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. एकदा हाँ, वो थोड़ा इमोशन कम पड़ राजा गया. आपल्या मुलांसाठी राजवाड्याजवळ एक मोठा तलाव बांधतो आणि त्यात मुलांना खेळण्यासाठी मासे सोडतो. तलाव तयार झाल्यावर त्याची मुलं तलाव पाहायला जातात. त्या तलावात सगळ्या माशांबरोबर एक बेडूक पण राहत असते. राजाच्या मुलांनी त्या अगोदर बेडूक कधीही पाहिलेले नसते. त्यामुळे त्यांना वाटते तलावात हा वेढव प्राणी कशाला. ते राजाला जाऊन सांगतात की तलावात त्यांना हा न आवडणारा एक बेढव प्राणी आहे. वो एक्टिंग नहीं किया मैंने. I am also reading it for the first time, right? Yes, It's not yes. just reading, Vaishali. It's not just reading. It Yes. is modulating. You're an actor. You're an artist. Yes, I forgot that in the First reading. round warm up, okay, totally okay. Not a problem. ठीक है. ठीक है. Noted. अभी देखो, left brain क्या करता है? पढ़ता है. हाँ. One word at a time. Right brain क्या करता है? उसको लेकिन वो कलर करता है. हाँ, तो अभी वैशाली ने जो काम किया सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से काम किया. या हमें बोथ द ब्रेन्स यूज करने हैं. प्रीती, ती वाईट सवय जी आहे ना, तिथे क्लिक कर ना. लेट हर डू दॅट. खाली वाईट सवय. हा गेलं कवर. नाही ठीक आहे, कुठलंही किंवा सत्कार्याचे फळ. सायराची मराठी खूप अमेझिंग आहे, त्यामुळे शी कॅन रीड डिफिकल्ट वन्स. तसं काही नाही तुमचं. अरे सायरा नाही. This one, right? White. Yes. You want to take moral stories only? Actually, that would be good. Okay, fine. Here it is. Pallavi, time करो. हाँ, एक सेकंड. Start. I'm not even combing my. एक श्रीमंत माणूस आपल्या मुलाच्या वाईट सवयीमुळे अस्वस्थ होता. जेव्हा पण तो श्रीमंत माणूस आपल्या मुलाला ती वाईट सवय सोडण्यासाठी सांगे, तेव्हा तो मुलगा म्हणे, अजून मी छोटा आहे, हळूहळू मी ही सवय सोडून देईन. पण तो मुलगा ती वाईट सवय सोडण्यासाठी कधीच प्रयत्न करत नव्हता. एक दिवस त्या गावामध्ये एक थोर साधू पुरुष आले होते. ज्या वेळेस श्रीमंत माणसाला त्या थोर साधू पुरुषाची ख्याती समजली, तेव्हा तो त्या साधूकडे गेला आणि आपली समस्या त्याला सांगितली. साधूने श्रीमंत माणसाची समस्या ऐकली आणि त्याने श्रीमंत माणसाला आपल्या मुलाला घेऊन दुसऱ्या दिवशी सकाळी बागेमध्ये येण्यास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वडील आणि मुलगा बागेमध्ये पोहोचले. साधूने मुलाला जवळ बोलावले आणि म्हणाले, आपण दोघे या बागेत फेरफटका मारूया. Stop. गुड या. Okay. Nice. अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग सब हाँ. क्रिटिकल फीडबैक देंगे. हम Okay. एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? सायरा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, बाद में यू वर जस्ट रीडिंग. बहुत अच्छा. आप दोनों का, इवन वैशाली एंड सायरा, आप दोनों का लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप्ड है. आपको फंबल्स नहीं आ रहे, यू आर ऑन टॉप ऑफ इट, आपका मीनिंग समझ आ रहा है, पर राइट ब्रेन का काम कम पड़ रहा है. ओके, तो इसको कैसे कर सकते थे? मुझे पिक्चर, मतलब क्या हो रहा है, मूवी नहीं प्ले हो रही, बस रीडिंग हो रही है. गेटिंग इट? ओके. सो एक श्रीमंत माणूस आपल्या मुलाच्या वाईट सवयीमुळे अस्वस्थ होता. एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं. गेटिंग इट? अब जब मैं एक्सप्रेशन देती हूँ तब उसका मतलब सच में समझ आता है. अस्वस्थ, when you have your eyebrows pulled, your face you become अस्वस्थ, you look irritated. Okay. एक श्रीमंत माणूस, so श्रीमंत is like expression is higher. Okay. एक श्रीमंत माणूस आपल्या मुलाच्या वाईट सवयीमुळे अस्वस्थ होता. When you give this, your voice also shows it. मैं तो चाहूंगी कि आप लोग वीडियो ऑन करके काम करें इस पे. ठीक है. You have to express. Priti, I would like to ask both of them, Yes. how much time they have spent in reading the story before they start articulating it. To be honest, mine was very small, and since it was a moral story, a kid's moral story, it was easy. I think Saira's script was a little difficult than mine.
So I didn't take much of time. I got the gist of the whole story in few seconds, you know, that it's about a frog and other things. But Saira's was a little difficult. So I would like to take a difficult script next time. Yeah, okay, second round करेंगे हम लोग. No problem. But both of you, मैं आप दोनों को लेफ्ट ब्रेन तो अच्छा डेवलप्ड है, अब राइट ब्रेन की बारी है आपके दोनों की, ठीक है ना? So you need to now work on that. But both are awesome. So यहाँ पे टाई हो चुका है. Okay. Super. Now we go to the next जोड़ी. Thank you. Yes. नेक्स्ट जोड़ी पे जाते हैं. कौन है नेक्स्ट जोड़ी अवेलेबल अभी?